لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ آج سے شروع، تیز آندھی، بارشوں اور ژالہ باری کا امکان۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد۔ چنیوٹ پولیس نے محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ 1600 سے زائد پولیس اہلکار اور سینکڑوں والنٹیئرز ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ایس پی جڑاوالا اختر وینس کی قیادت میں اندرون شہر فلیگ مارچ کا انعقاد۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ اشال فاطمہ کیس، لواحقین اور شہریوں کا ڈی پی او آفس جنگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی پر شدید عدم اطمینان کا اظہار۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا ان ایکشن، ڈیوٹی سے غیر حاضر 16 ملازم معطل۔ علی پور چٹھا میں رکشہ مافیا کے غیر قانونی اڈوں سے شہری شدید پریشانی سے دوچار، گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ چھانگا مانگا جنگل میں جانوروں کے لیے بنائے گئے تالاب سے 4 بچوں کی لاشیں برآمد۔ منڈی بہاؤدین میں ڈمپر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، شوہر زخمی ہو گیا۔ ایف آئی اے اور پولیس کی وردی میں ملبوس ملزمان گن پوائنٹ پر گھر کا صفایا کر گئے۔ بابا جیون شاہ کے عرس پر تماچوں والی کبڈی کا شاندار مقابلہ، شائقین نے پسندیدہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس پر نوٹوں کی بارش کر دی، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ مشہور بھارتی ڈرامہ کمکم بھگیا کی اداکارہ سنجیتا اوگلے نے خودکشی کر لی۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ الحمدللہ، شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیہ میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیہ، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں اور کسانوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ گرد آلود ہوائیں اور بارش برسانے والا موسمی سسٹم پاکستان پہنچ گیا ہے، جس کے باعث پنجاب بھر میں آج سے 20 جون تک مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر میں آندھی، بارشوں اور ژالہ باری کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات،
حضرات، گجرانوالہ، حافظ آباد اور وزیر آباد میں بارش متوقع ہے۔ اسی طرح فیصل آباد، اوکاڑا، قصور، خوشاب، سرگودا، بھکر، لیا، میاں والی، بہاولپور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان اور کوٹ ادو میں بھی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ بابا گرو ارجن دیو جی کی برسی کی سالانہ تقریب کے سلسلے میں بھارتی سکھ یاتریوں کی گردوارہ روڑی صاحب احمد آباد آمد۔ 517 یاتری قافلے کی صورت میں فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ گردوارہ روڑی صاحب پہنچے۔ گجرانوالہ سے عتیق یوسف کے مطابق کمشنر گجرانوالہ ڈویژن محمد علی، آر پی او خرم شہزاد ورائچ، ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور سی پی او ڈاکٹر قیاس گل نے یاتریوں کا استقبال کیا۔ یاتریوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اس موقع پر کمشنر گجرانوالہ محمد علی نے بتایا، یاتریوں کی سہولت، سیکیورٹی اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور انہیں ہر ممکن سہولت اور پرامن ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ سکھ یاتریوں نے پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے مثالی انتظامات اور مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہازیب حسین لابر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول، اے سی چودھری ضیاء اللہ، ایم ڈی محکمہ واسا، واپڈا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریسکیو سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ خوشاب سے مشرق ڈیجیٹل کے سید حسین شاہ کے مطابق اے سی نوشہرہ، نورپور، قائد آباد نے ویڈیو لنک شرکت کی اور اپنی تحصیلوں میں محرم الحرام کے جلوسوں، مجالس اور انتظامات کے بارے بریف کیا۔ اجلاس میں شریک محکموں کے افسران نے محرم الحرام کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات سے متعلق بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے محرم الحرام کے موقع پر تمام محکموں کے افسران کو اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دینے کے احکامات جاری کیے۔ محرم الحرام کے جلوسوں کی مؤثر مانیٹرنگ کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں کنٹرول روم مکمل فعال۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا کنٹرول روم کا دورہ، انتظامات اور مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد سے دانش شبیر کے مطابق محرم کنٹرول روم یوم عاشور کی رات تک 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ متعلقہ محکموں کے عملے کی شفٹوں میں ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے دورے کے دوران ہدایات دیتے ہوئے کہا، معلومات کے تبادلے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈیوٹی ذمہ داری اور مستعدی سے انجام دی جائے۔ انہوں نے کہا، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور مجالس کی ہر زاویے سے مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ چنیوٹ پولیس نے محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لی۔ مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کے مطابق چنیوٹ ضلع میں 558 جلوس اور 685 مجالس کا انعقاد ہوگا، جہاں 1600 سے زائد پولیس اہلکار اور سینکڑوں والنٹیئرز بھی پولیس کے شانہ بشانہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس حوالے سے ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا، سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس اور مجالس کی سخت چیکنگ ہوگی۔ سپروائزری افسران مجالس جلوسوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا، مجالس جلوسوں پر 4 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ایس پی جڑاوالا اختر وینس کی قیادت میں اندرون شہر فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں پولیس کی بھاری نفری، ایلیٹ فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے عثمان نفیس کے مطابق فلیگ مارچ شہر کے مختلف اہم راستوں، امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹ سے گزرا، جہاں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایس پی اختر وینس کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی کے لیے جامع پلان ترتیب دیا گیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے پولیس مکمل طور پر الرٹ ہے۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شبیر حسین آزاد کے رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں آر پی او سہیل اختر سکھیرا نے فیصل آباد ریجن میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی۔ آر پی او کے مطابق ریجن بھر میں محرم الحرام میں مجموعی طور پر 1528 جلوس برآمد ہوں گے، جبکہ 4000 سے زائد مجالس منعقد ہوں گی، جن کی سیکیورٹی کے لیے 18000 سے زائد افسران اور اہلکاران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سہیل اختر سکھیرا نے بتایا، جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی کے لیے 9000 سے زائد رضاکار بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور چنیوٹ پولیس کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ٹی پی او ڈاکٹر نوید عاطف، پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ میں ضلع بھر سے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا ختم نبوت چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کی مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے،
हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख का मुरीदके में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। शेखुपुरा से मशरिक डिजिटल के मुमताज अहमद कासमी के मुताबिक डीपीओ ने इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात की और मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात, सिक्योरिटी इकदामात और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने जुलूसों के रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों, सीसीटीवी कवरेज, पार्किंग, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च के इंतजामात का भी जायजा लिया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन अमान को बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद की मरकजी इमाम बारगाह जाफिया में मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। इस मौके पर SHO थाना जंग बाजार और दीगर अफसरान मौजूद थे। पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, CTD, स्पेशल ब्रांच, टेक्निकल स्वीपिंग, बम डिस्पोजल, रेस्क्यू 1112, फायर ब्रिगेड ने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। पाक पतन से इमरान शाही के मुताबिक अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात छठे रोज़ में दाखिल हो गईं। छठे रोज़ की रसूमात साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी ने अदा की। साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती ने ज़ायरीन में रवायती तबरकात तकसीम किए। ख़त्म शरीफ के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। इशाल फातिमा केस ने एक बार फिर नया रुख इख्तियार कर लिया। मकतूला के लवाहिकीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने DPO ऑफिस जंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पुलिस, डॉक्टरों और केस की तहकीकात के लिए कायम की गई JIT पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। शंग से इबाद अली शाह के मुताबिक मुजाहिरीन बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए DPO ऑफिस के बाहर जमा हुए और इंसाफ के हक में नारेबाजी की। लवाहिकीन का कहना था कि केस की तहकीकात शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज में नहीं की जा रही, जबकि मौजूदा JIT पर भी उन्हें एतमाद नहीं रहा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि केस की मुकम्मल, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए ईमानदार और बासलाहियत अफसरान पर मुश्तमिल नई JIT तश्कील दी जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। एहतजाज के दौरान लवाहिकीन ने DPO जंग की तब्दीली का मुतालबा भी किया। उनका मौक़िफ़ था कि केस के मुख्तलिफ मराहिल में कई सवालात जन्म ले चुके हैं जिनके तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए जा रहे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल की इब्तदाई रिपोर्ट्स और बाज़ तिब्बी अमूर में भी संगीन गफलत बरती गई, जिसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा साकिब रजा इन एक्शन। बारिश के दौरान गैर हाजिरी पर ऑपरेशन डायरेक्टरेट के 16 मुलाजिम मुअत्तल। बारिश की पेश गोई पर तमाम ऑपरेशन स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की गई थी। MD वासा साकिब रजा ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ सब डिवीजन्स के विजिट किए। इस दौरान अपनी ड्यूटी पॉइंट्स पर गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। मुअत्तल होने वालों में मदीना टाउन सब डिवीजन के सुपरवाइजर हारिस, पीपल्स कॉलोनी 2 सब डिवीजन के सुपरवाइजर अमन भी मुअत्तल किए गए। मुअत्तल होने वालों में आफ्ताब, सरफराज, इमरान, चार्ल्स, आदिल, शहजाद, नदीम, इफ्तिखार, सतार, कामरान, बशीर, शहबाज, तारिक और न्याज शामिल हैं। चिन्योट में LPG गैस कीमतों में होशरुबा इजाफा। आसमान से बातें करती कीमतों से सार्फिन चकरा कर रह गए। चिन्योट मार्केट में फी किलो LPG 600 रुपए तक फरोख्त होने लगी। महंगाई के सबब दिहाड़ीदार और कारोबारी हजरात पहले शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सुई गैस और सस्ती LPG गैस की फराहमी के लिए इकदामात उठाए जाएं। मूसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में खवातीन की सेहत के फरोग के लिए मुफ्त गायनी मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें इलाके की खवातीन का मुकम्मल और मुफ्त भी मुआयना किया गया। कैंप में मूसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की मेडिकल डायरेक्टर, मारूफ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और साबिक MSD HQ अस्पताल ड्राइविंग डॉक्टर जवेरिया असलम ने खवातीन का तिबी मुआयना किया और उन्हें सेहत से मुतालिक ज़रूरी रहनुमाई फराहम की। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त अद्वियात, मुफ्त अल्ट्रासाउंड और मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत भी फराहम की गई। इस मौके पर मूसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन मुफस्सिल नदीम बट ने समाजी रहनुमा एहसन अफजल खोखर को अस्पताल का दौरा करवाया और उन्हें अस्पताल में फराहम की जाने वाली जदीद तिबी सहूलियात से आगाह किया। अलीपुर चट्टा से मशरिक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां ट्रैफिक का निज़ाम बदतरीन सूरत इख्तियार कर चुका है। रिक्शा माफिया के गैर कानूनी अड्डों से ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रसूल नगर रोड, मदीना चौक, अल्लाह चौक, अमीर हमजा चौक और गोरमे चौक से मदीना चौक तक सड़क के दोनों तरफ रिक्शा माफिया के गैर कानूनी अड्डों ने कब्जा जमा रखा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर हो रही है और घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। गर्ल्स और बॉयज हाई स्कूल के संगम पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से रिक्शा स्टैंड के नाम पर जगह मुख्तस किए जाने के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है। सारा दिन रिक्शों का हजूम रहता है और छुट्टी के औकात में सड़क बंद होकर रह जाती है। मदीना चौक से गोरमे चौक तक चांद गाड़ियों के गैर कानूनी अड्डों और तजावुजात ने ट्रैफिक को मुकम्मल मफलूज कर दिया है। शहरियों का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक वार्डन सिर्फ जुर्माने और शहरियों की तस्लील में मसरूफ रहते हैं, मगर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में दिलचस्पी नहीं लेते। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर, CPO और CTO गुजरांवाला से फौरी नोटिस लेते हुए तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन और ट्रैफिक निज़ाम की मुस्तकिल बहाली का मुतालबा किया है। अरबों रुपए के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बावजूद जोन 38 के मुतादिद इलाके सफाई बहरान का शिकार। यूनियन कौंसिल्स 98, 105,
105, 106, 109, 111, 112 और जोन 41 की यूनियन कौंसिल 259 के मुताबिक रिहायशी और तिजारती इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। निश्ता टाउन से मोहम्मद सज्जाद के मुताबिक हाजन पार्क, खारक नाला, पीको रोड, एवान टाउन, वेलफेयर सोसाइटी, क्रीसेंट टाउन और जमाल कानूनी में रोजाना की बुनियाद पर सफाई के मसाइल दरपेश हैं। इसी तरह आमना पार्क, इत्तफाक टाउन, अहबाब कॉलोनी, अहमद हाउसिंग और इतराफ में वाक़ आबादियों में भी सफाई की सूरत हाल मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा रही है। मुतअद्दिद इलाकों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं, जिसके नतीजे में सड़कों, खाली प्लाटों और गलियों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियां, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। अलीपुर चेठा के नवाही गांव सहारनखुर्द में सफाई सुथराई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से बाकायदा डंपिंग पॉइंट्स कायम हो गए हैं। सहारनखुर्द के मुतादिद महल्लाजात और बाज़ारों में नालियों की बरवक्त सफाई ना होने के बाइस गलियां और बाजार ज़ेरे आब आ चुके हैं। कूड़ा करकट उठाने का निज़ाम दरहम भरहम है और सफाई अमला सिर्फ मरकजी चौक तक महदूद रहकर रस्मी कार्रवाई के बाद गायब हो जाता है, जबकि रिहायशी इलाकों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सफाई सुथराई के नाम पर कूड़े के बिल भिजवा दिए गए हैं, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स हैं। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से मुतालबा किया है कि सफाई सुथराई के जिम्मेदार अफसरान और अमले की नाकिस कारकर्दगी, सुस्ती और नाअहली का फौरी नोटिस देते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। मेलसी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले वर्कर्स कंपनी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मुलाजमीन की जानिब से जारी की गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें बरवक्त तनख्वाहों की अदम अदायगी, तनख्वाहों में मुबैना कटौतियों, इजाफी ड्यूटी और दीगर मसाइल की शिकायत सामने लाई गई हैं। मुतादिद वर्कर्स ने कंट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ एहतजाज करते हुए संगीन इल्जामात आयद कर दिए। वर्कर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियोस में दावा किया गया है कि उन्हें बरवक्त तनख्वाहें अदा नहीं की जाती, जबकि तनख्वाहों में बिला जवाज कटौतियां भी की जा रही हैं। वीडियो में बाज़ वर्कर्स ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि कंपनी में मुबैना तौर पर रिश्वत सितानी का माहौल मौजूद है, जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईद उल अज़हा पर ऐलान करदा 10,000 रुपये बोनस भी ताहाल नहीं दिया गया। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, लोकल गवर्नमेंट हुकाम और जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब कंपनी इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। हल्का PP 159 में जारी तरक्याती मंसूबे अवामी फलाह और खुशहाली के आकाश, अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून की सियासत का बुनियादी शार हैं। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीगी रहनुमा राना इमरान अली मंच ने मीडिया से गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा, UC 35 सरोबा, वैंस हाउसिंग सोसाइटी, पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी, इंडस्ट्री एरिया और शदाब कॉलोनी को मिलाने वाली अहम सर्विस रोड की तामीर इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा था, जिसकी तकमील से हज़ारों शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। उनका कहना था कि सड़कों की तामीर, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल के हल के लिए जारी इक़दामात हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों का अमली सबूत हैं। चांगा मांगा जंगल में जानवरों के लिए बनाए गए तालाब से 4 बच्चों की लाशें बरामद। मशरिक डिजिटल के राना वाजिद के मुताबिक चांगा मांगा के खेत नंबर 64 से 9 साला हादिया, 10 साला अदनान, 11 साला मुराद और 11 साला इमरान की लाशें मिली। हादिया, अदनान और मुराद आपस में बहन भाई, जबकि इमरान उनका कजन था। बच्चे टोबा टेक सिंह से गर्मियों की छुट्टियां गुजारने निहाल वीर सिंह वाला आए हुए थे। वालिदैन जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। इसी दौरान एक बच्चा तालाब में गिर गया, जिसे बचाने की कोशिश में दिगर 3 बच्चे भी 8 से 10 फुट गहरे तालाब में डूब गए। चारों बच्चे मौके पर ही जाँ बाक हो गए। वालिदैन वापसी पर पहुंचे तो लाशें पानी में तैर रही थी। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। DFO और SDFO ने जाए हादसा का दौरा किया और वाक़े की तफसीलात हासिल की। अलमनाक हादसे पर इलाके में सोग की फिजा हर आंख अश्कबार हो गई। मंडी बहाउद्दीन से फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सरगोदा रोड पर डंपर की टक्कर से खातून जहां बाग मियां जख्मी हो गया। हादसा फाड़ियां वाली में मेजान बैंक के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही जहां बाग हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद जख्मी हो गया। मियां बीवी का ताल्लुक गाँव नूरपुर से बताया गया है। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार होने में कामयाब हो गया।
मेलसी में मारूफ दही भल्ले फरोश की दुकान से खरीदे गए दही भल्लों में मुबैना तौर पर मुर्दा छिपकली बरामद। एक ही खानदान के 5 अफराद की तबीयत खराब होने पर उन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के सैयद कसवर हुसैन के मुताबिक नवाही इलाके अशरफ शाह के रिहायशी हाजी मोहम्मद इरफान ने दावा किया है कि उन्होंने कायद-ए-आज़म रोड पर वाक़िया एक मारूफ दुकान से दही भल्ले खरीदे और घर ले जाकर अहल खाना के साथ खाए। उनके मुताबिक खाने के दौरान दही भल्लों में से एक मुर्दा छिपकली बरामद हुई, जिसके बाद अहल खाना की तबीयत खराब हो गई। मुतासरा खानदान के 5 अफराद को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर के मुताबिक थाना कैंट की हदूद चक 86 शुमाली में डकैती अगवा की वारदात में FIA और पुलिस की वर्दी में मलबूस मुलजमान गन पॉइंट पर घर का सफाया कर गए। मुलजमान 54 लाख रुपए नकदी, 10 तोला सोना, 1300 सऊदी रियाल, 3 कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात के बाद मुलजमान मोहम्मद इरफान नामी शख्स को अगवा करके साथ गाड़ी में ले गए। रास्ते में तशद्दुद करते और जिस्म पर सिगरेट लगाते रहे। बादजा 109 जनूबी पहाड़ी के करीब नीम बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। थाना कैंट पुलिस ने मुद्दई इरफान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। चिश्तिया में थप्पड़ों की बौछार, तमाचों की गूंज। पाकपतन, साहिवाल, हवेली लखा, चीचावतनी और खानेवाल से आए इंटरनेशनल खिलाड़ियों के माबेन सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा जेवन शाह के 30वें सालाना उर्स के मौके पर पंजाब की पसंदीदा तमाचों वाली कबड्डी का शानदार मुकाबला हुआ। मशरिक डिजिटल के असदुल्ला बुखारी के मुताबिक पंजाब भर में मशहूर तमाचों वाली कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए शायकीन जोक दर जोक आए। कौमी खिलाड़ी वकास जट, सरदार अजमल खान, अकरम वट्टू, राजपूत और दीगर के तमाचों की गूंज ने अखाड़े में समा बांध दिया। तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया। शायकीन ने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर नोटों की बारिश कर दी। ढोल की थाप पर खिलाड़ियों और शुरा ने भंगड़े डाले। मेले में खाने पीने, झूलों और बच्चों के खिलौनों के स्टॉल भी लगाए गए। भारत के मशहूर ड्रामे कुमकुम भगिया की अदाकारा संजीता ओगले ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक 22 साला संजीता ओगले ने अपनी रिहाइशगाह पर पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी की है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि जायब वक़्वा से ना कोई मशकूक चीज़ और ना ही कोई खुदकुशी नोट बरामद हुआ। पुलिस ने मजीद बताया कि अदाकारा के वालिद ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया है और ना ही मौत का जिम्मेदार किसी को ठहराया है। अदाकारा ने अपनी मौत से चंद घंटे कबल सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्हें मशहूर गाने डफली वाले गाते देखा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।